सो ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। अगेन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आपको 3 टाइप से पूछे जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेथड। ठीक है, फर्स्ट अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट सैलरी से स्टार्टेड है, ठीक है, देन यू हैव टू सॉल्व सैलरी का हेड, देन आफ्टर दैट आपको क्या सॉल्व करना होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, देन टोटल ऑफ दीस टू ग्रॉस टोटल इनकम आपको मिलेगा, देन आपको डिडक्ट करना है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, then you will get finally net taxable income। ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन, वो सेम मेथड से हमने फॉलो किया था। फर्स्ट वी हैड सॉल्व आईएफएस, तो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो पार्ट है, ठीक है, जो हेड हमने सॉल्व किया था इंडिविजुअली, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। आईएफएस का फॉर्मेट क्या था, टोटल सैलरी और इनकम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, हिज और हर एम्प्लॉय, then you will get gross salary, then gross salary minus deduction under section 16। ठीक है, so there are 3 deductions, first one is standard deduction rupees 40,000, second one is entertainment allowance deduction which is only allowed to the government employee, and there are 3 criteria to calculate entertainment allowance, which are they, first one is, tell me, what is the first criteria for entertainment allowance? Bolo Juri. So 5,000. 5,000 is a reduction, 20% of basic salary or actual amount received. Actual amount received 5,000 limit, 20% or we can say 1/5 of basic salary, and third one is actual amount received, whichever is lower, so वो entertainment allowance मिल जाएगा, and third one is profession tax and it should be paid not on accrual basis। so add तीनों को करेंगे, then आपका deduction 16 मिल जाएगा, then you have to deduct, and final net taxable salary। तो आपका सैलरी का हेड क्लियर हो गया। then next one is income from other source। so income from other source का जो मैंने आपको हेडिंग कराया था, उसमें देखो just you have to identify whether this income is taxable or exempt। इसमें तो यही फाइंड आउट करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इसमें कुछ भी आपको डिडक्शन वगैरह नहीं है, either income is taxable or income is exempt। ठीक है, फॉर एग्जांपल interest on public provident fund, taxable or exempt? tell me, interest on public provident fund क्या होगा? interest on public provident fund, no idea, pdf नहीं पढ़ा, exempt। yes, this is exempt। interest on ppf exempt होगा। gift received from sister 1 lakh exempt। dividend from foreign company, dividend from foreign company, सर आएगा। yes, taxable, yes, this is taxable। next, interest on government bonds, interest on government bond, taxable, yes। then interest on post office received, post office saving account received rupees 5,000, सर 1500 पे टैक्स लगेगा। yes, 1500 will be taxable क्योंकि 5000 received हुआ है, माइनस exempt up to 3500, वो exempt होता है, आपने डिडक्ट कर दिया, then final answer is 1500 will be taxable। ठीक है, तो जस्ट ये आपको कैलकुलेट करना है अंडर द हेड IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, सो जो टैक्सेबल होगा वो अमाउंट लिखो, जो exempt होगा वो आंसर नील आ जाए। देन एग्रीगेट ऑफ दीस टू, ये दोनों का टोटल जो होगा will be known as gross total income, वो आपका gross total income मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ठीक है, I had already taught you from 80C to 80U, जो भी 7 और 8 डिडक्शंस हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि क्वेश्चंस में कहां-कहां पे वो डिडक्शंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल
term plan for 5 years. Term plan for 5 years. Deduction कहाँ मिलेगा? In which section? 80C. 80C. Yes, absolutely right. And maximum deduction limit is 1,50,000 or actual amount, yes, one lakh. maximum 150 whichever is lower. or actual amount Whichever is lower. Yes, absolutely right. For example, mediclaim premium paid. किसमें मिलेगा deduction? Section is mediclaim का. 80D. Absolutely 80D. Okay. And SSC, if SSC is self severe disabled or just disabled, so 80U. 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 you याद रखना, बोला था ना you shortcut, ठीक है. And contribution to pension fund, if SSC has contributed in pension fund, then 80CCC. CCC. right, 80CCC, very good. And if an SSC had invested in both saving schemes like 80C as well as 80CCC, then deduction 3 lakh का होगा. 80CCE. 1,50,000. 80CCE. 150. Whichever is 1,50,000. 80CCE will come and it restricted up to 1,50,000. Okay. And then suppose SSC has borrowed a loan for education purpose. ठीक है? 80E. 80E. So principal का deduction मिलेगा और interest का. Interest. 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 And the limit is? No limit. No limit. Limit is no limit. Okay, very good. So वो deductions आपको यहाँ से क्या करने हैं? अच्छा, most important एक जो deduction है जिसमें confused हो जाते हैं students, that is 80D. ठीक है, उसमें 5,000 is preventive for 5,000 is for preventive health check. ठीक है, वो आप कैश में पे कर सकते हो. अदरवाइज बाकी जितने भी होंगे वो क्या होने चाहिए? अदर देन कैश. दैट मींस चेक और डीडी और ऑनलाइन ट्रांसफर और एनी अदर मोड, कोई भी मोड में होना चाहिए, बट अदर देन कैश. कैश में कितना अलाउड है? ओनली अप टू 5,000. 5,000. यस, ठीक है. सो जस्ट आपको यहाँ से वो डिडक्शन माइनस करना है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. देन फाइनली यू विल गेट योर फाइनल आंसर व्हिच इज नेट टैक्सेबल इनकम. सो दीज आर द प्रोसीजर टू कंप्यूट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. ठीक है. तो जस्ट मैंने आपको ये सैलरी का पार्ट बताया. अगर क्वेश्चन सैलरी से स्टार्ट हुआ, then you have to first solve salary, then other source, then you'll get GTI, deduction minus, and then NTI. ठीक है. Okay. Second part is if question is started from the information of house property. तो house property के लिए कौन सा format है? Tell me which format? House property के लिए कौन सा format? LOP, SOP. LOP, LOP. लेट आउट प्रॉपर्टी एंड SOP. ठीक है. तो वो दोनों फॉर्मेट, अगर क्वेश्चन में ओनली LOP है तो जस्ट आपको LOP सॉल्व करना होगा. अगर दोनों भी दिया है तो दोनों सॉल्व करना होगा. देन यू विल गेट हाउस प्रॉपर्टी टोटल टैक्सेबल इनकम. देन सेकंड वन इज IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ये तो मोस्टली गिवन ही होगा, चाहे क्वेश्चन कोई भी पूछे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और एनी अदर. ठीक है. देन अगेन टोटल GTI, then again minus, ये जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है. then finally you will get net taxable. Understood? So question का पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? Tell me. Yes, sir. And last one, PGBP. So PGBP business profession means sir how do we identify कि PGBP का क्वेश्चन है या फिर हाउस प्रॉपर्टी है और सैलरी है? Of course this is normal है ना. अगर आपको बेसिक सैलरी वगैरह क्वेश्चन में दिया है तो ये वाला होगा, है ना. LOP SOP गिवन है, सो हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट हो रहा है. एंड अगर P&L अकाउंट मतलब बना के दिया है, फ्रेम करके दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड डेफिनेटली दिस इज PGBP. देन PGBP का आपको सॉल्व करना है. नेट प्रॉफिट एज पर P&L से स्टार्टर होगा, याद है बताया था स्टार्टर. देन ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड लेस इनकम डिसअलाउड, देन यू विल गेट टैक्सेबल PGBP. ठीक है. अगर प्रोफेशन का हुआ, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन के केस में क्या होगा? जो एक्चुअल इनकम है वो ऐड करो एंड एक्चुअल एक्सपेंस माइनस करो, देन यू विल गेट फाइनल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन. तो ये हो गया.
देन उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगेन सेम प्रोसीजर, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज टैक्सेबल और exempt. टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, then ये वाला सेम deduction under chapter 6A, and then finally net taxable. Clear? Understood by everyone? Any question? No, sir. Okay, ठीक है. अच्छा सर, I have a doubt कि आपने जो बताया ये ऐसे ही given होगा income from salary, ऐसे info नहीं आ सकता कि like income from salary and then income from HP and then other source and then total GTI, then less chapter 6A minus then net taxable income. Of course आ सकता है, ठीक है, because आपने तो हर टॉपिक पढ़ा है ना, जितने भी हेड है, ये भी हेड पढ़ा है. तो चेंजेस क्या हो जाएगा? टेल मी, चेंजेस क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, जस्ट आपको सैलरी सॉल्व करना है, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन अदर सोर्स, देन एग्रीगेट ऑफ दीस थ्री GTI. सो ऐसे करके यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी ऑफ इनकम. आई होप क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर है, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है. टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. लेट्स वन क्वेश्चन. ठीक है, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था, बट आज जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लेट मी शेयर. अच्छा, एक ये है, जस्ट लास्ट लेक्चर में मुझे किसी ने कहा था सर प्लीज रिकॉर्ड. ठीक है, सो देखो अभी जस्ट मैंने आपको शेयर क्या किया है, ये वाला पार्ट शेयर किया. ठीक है, सो रिकॉर्ड भी क्या हो रहा है, ये जो स्क्रीन है क्वेश्चन वो रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? Yes, sir. है ना? तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फोन वगैरह है तो आप इसका पिक वगैरह ले लो क्वेश्चन का. देन फिर मैं वो ले लिया सर. शेयरिंग स्टॉप करके देन वो जो आपका बोर्ड का स्क्रीन है वो ओपन कर दूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. सो जस्ट आप इसका पिक वगैरह ले लो. ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं स्मॉल साइज कर देता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, देन मैं इसको स्टॉप कर दूंगा. ठीक है, देन उसके बाद में सेव, डन. Done. Okay, all of you done? Should I stop sharing? Yes, sir. Okay, and others please बोलो फटाफट. Done? हो गया सर. हाँ. Okay. Just मैं आपको ये शेयर स्टॉप कर देता हूँ. ठीक है, ओके. सो अभी बोर्ड का स्क्रीन ओपन है. ठीक है, सो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर अभिजीत. ओके, क्वेश्चन इज मिस्टर अभिजीत who is physically disabled to the extent of 55%, comma, works in a private company. Okay, he has provided the following particulars of his income for the previous year ended 31st March 2020. Okay, so these are the question. So tell me, Mr. Abhijit is a government employee or private employee? प्राइवेट. Private. ठीक है, so private employee है. That means क्या होगा? Tell me. Entertainment Entertainment allowance allowance deduction नहीं मिलेगा. मिलेगा. Entertainment allowance deduction will not allow. ठीक है, and ये salary का ही question है. That means first one. So we have to solve salary first, then other source, then GTI, then वगैरह. ठीक है, okay. So first line में क्या लिखा है? Mr. Abhijit who is a physically disabled extent of 55%. That means deduction मिलेगा under section 80U. 80U. Absolutely right. But कितना deduction मिलेगा? How much? 75,000. 75,000. Absolutely right. ठीक है, so 75,000 और actual amount spent whichever is less, ऐसा criteria है.
No, sir. 75,000. at 75% का deduction. Okay, yes, so 80 you एक deduction मिल गया. Next, okay, first point is basic salary rupees 40,000 per month. Okay, so 40,000 per month multiply by 12 है ना, पूरा 12 हो जाएगा because no retirement info is given. Next, dearness allowance. Okay, next is 16,000 per month. Again 16,000 per month multiply by 12. Next one is house rent allowance 10,000 per month, but in bracket is given exempt under section 10 rupees 6,000 per month. So वो क्या हो जाएगा, deduct हो जाएगा, है ना. Next, traveling allowance 50,000, but bracket में given है amount actually spent on traveling was rupees 38,000. Tell me, deduction मिलेगा इसका? Deduction will allowed or not? Yes, sir. होगा. Sure मिलेगा. याद है आपको बताया था traveling allowance means what? Conveyance allowance. Conveyance हो जाता है. है हाँ. ना? So conveyance में actual spend कितना किया है वो हम deduct कर देते हैं. ठीक है? So 50,000 traveling allowance minus 38,000. 38. Taxable is 12,000. Okay. Next, point number 5. He was provided with the accommodation by his employer. आगे क्या लिखा है? The perquisite value of which was rupees 35,000. क्वेश्चन में डायरेक्टली खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है perquisite value. That means सब perquisite में add होगा. yes, 35. taxable. ठीक है, ऐड हो जाएगा 35,000. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6. बोनस डिक्लेयर्ड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर वाज 15,000. ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर. व्हाई? सर बिकॉज पेड बेसिस पे होता है. पेड Yes, बेसिस पे just- होता है. एम्प्लॉयर ने अनाउंस किया है इसलिए मैंने ऐसे करके बोला. ओनली अनाउंस्ड. ठीक है, सो डिक्लेयर्ड नहीं है. ओके. नेक्स्ट, प्रोफेशन टैक्स 51,000. ये तो डिडक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 16. नेक्स्ट, ओके, पॉइंट नंबर 8 थोड़ा ध्यान से आंसर करना. इज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 48,000 सैलरी में इंक्लूड होगा और नॉट? No, sir. Exempt Right, sir. होगा. Exempt. Expense. Yes, absolutely wrong answer. ऐसा मैं नहीं कहूँगा because right है. ठीक है? Employees contribution to PF is exempt because employee ने खुद ने अपने PF के लिए पैसे जमा किए ना. Employer ने दिया होता तो वो income होता. ठीक है? So this is not. Okay, point number 8. Okay. So any doubt till here 1 to 8? No, sir. Okay, तो आपका सैलरी मिल जाएगा, taxable salary. Clear? ओके, सो चलो सैलरी वाला सॉल्व कर लेते हैं ना फिर हम लोग. ठीक है, देन उसके बाद में आगे का कॉन्सेप्ट. प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट 1 to 8 एक बार वापस से रीड कर लो एंड प्लीज आस्क इफ एनी क्वेरी. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. वो आप लिख लेना. वो 5 पॉइंट क्या क्या उनको से 5 पॉइंट है. Name of the assessee, legal status, residential status. असेसमेंट ईयर. Previous year assessment year. यस. ओके, सो फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी. Okay, first one is income from salary. So income from salary में first क्या दिया है? Basic salary. ठीक है, amount is 16 per month. नहीं 16 नहीं है, 40 sorry. 40 के into 12. How much? कितना आ जाएगा? 4,80,000. आप लोग भी चेक करते रहना कि राइट है या रॉन्ग. Next one is DNS allowance. Amount is 16,000 multiplied by 12. Okay. How much? 120 and 120.
1,92,000. Yes, 1,92,000. Next one is house rent allowance. तो देखो मैंने शॉर्टकट लिखा है HRA and 16,000 per 10,000 per month. Amount is 120. Amount is 120 and then minus exempt under section 10. कितना exempt है? How much exemption amount is? 6,000 per month. That means मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 6K into 12 amount is 72. Yes or no? So balance amount will be 48. Please check it out. आप लोग भी check करते रहो. इसमें कितना 28 and 20. हाँ, yes, 48. Right. Yes, sir, 48. Next one is traveling allowance. Okay, so traveling allowance, that means conveyance allowance. Okay, so कितना है? Traveling allowance is 50,000. 50,000. And again minus exempt. ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ spent. जो actual spend है वो हम डिडक्ट कर देंगे. Amount is 38. So taxable will be 12,000. Next one is he was provided with the accommodation, means perquisite value. ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना accommodation. Amount is 35 and it is taxable. Okay. Next, bonus declare. Declare. Bonus declared आएगा. नहीं सर. No, sir. Profession tax, no, वो deduction में जाएगा. An employee's contribution to PF, just मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. ध्यान रखो, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. Employees contribution to PF. Okay, amount is 38 and minus exempt 38. Outer column. ठीक है, अगर आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. जस्ट मैंने रिमाइंड करने के लिए, रिपीट करने के लिए लिखा. ओके, दैट्स इट. सैलरी डन. टोटल वी विल गेट ग्रॉस सैलरी. टोटल करके बताओ जल्दी फटाफट कितना आएगा. 480, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख साइड में रख दो. 80, 92, 172, 8, 180, 220, 230, 7,67,000. 7,67,000. Right है? Check it. Yes, So sir. 7,67,000. 67. बराबर है. seven बोला. ही लिखा है. 67. हाँ. Okay, so minus deduction under section 16. First one is standard deduction. Okay, amount fixed है, which is 40,000. Second one, tell me entertainment allowance का deduction मिलेगा? Is he eligible to No, get? sir. नहीं है. No, sir. No. तो हम लिखते भी नहीं. ओके, मत लिखो, आपका जगह भी बचेगा, टाइम भी बचेगा. नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन टैक्स. डायरेक्टली अमाउंट इज 51,000. सो एग्रीगेट ऑफ दीस टू 91. ओके, एंड माइनस कर दो. 767 minus 91, 0 0 0. 7 minus 1 6, 16 minus 9 7 and 6. Check it. 6 lakh. Yes, sir. Right. Yes, है. sir. Okay. सर एक डाउट है सर. हाँ, yes, पूछो. सर वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 38,000 है कि 48,000 होगा? क्वेश्चन में 48 लिखा हुआ है इसलिए. Okay, okay. Question में 48 है. Just 48. Yes. मेरे अमाउंट थोड़ा सा मिसप्लेस. ठीक है. Okay. अच्छा, one more thing. आप इसको ऐसा डबल अंडरलाइन नहीं करना. ओके, प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज वो क्या हो जाएगा कि हाँ सम यहीं पे स्टॉप हो गया.
ठीक है, डबल हेडेड। सो ये कंटिन्यूटी है यहाँ। देन सेकंड हेड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेट्स चेक क्या क्या गिवन है। he also received the following. First point is, the ninth point is interest on FD with Bank of India 44,000, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ, जस्ट आप लोग बताओ ये टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। Interest on FD with Bank of India, income from other taxable. yes, this is taxable. Exempt का तो कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। 44,000 because interest कब exempt होगा? when only it received from PPF, है ना, public provident fund, or we can say interest on post office saving account, है ना। सिर्फ रेयर केस में ही क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, अदरवाइज इंटरेस्ट इज टैक्सेस। नेक्स्ट 10th पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन एफडी विद पोस्ट ऑफिस। ओके, लो ये भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन एफडी विद पोस्ट ऑफिस। टेल मी, टैक्सेबल, Exempt. Not taxable. exempt, not exempt? What's the final answer? लॉक क्या करें? So taxable है। Yes, answer is taxable because पर आपने तो बोला था पोस्ट ऑफिस पे नहीं होगा। मैंने बोला था पोस्ट ऑफिस पे नहीं पोस्ट होगा। ऑफिस सेविंग्स अकाउंट बोला था। Yes, interest on saving on post office. Okay, this is fixed. Okay, I think 9th and 10th point is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next one, 11th one. Okay, dividend from cooperative credit society. Cooperative society, credit printing mistake है वो, ठीक है। Dividend from cooperative society 6,500. Tell me, taxable or not? Dividend from cooperative society 6,500 is taxable or not taxable or exempt? Taxable. Yes, anyone? और कोई दूसरा कोई आंसर है किसी के पास? Tell me. Let me tell you, don't go on my face, ठीक है। मेरा फेशियल एक्सप्रेशन देख के आप लोग डिसाइड मत करो कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। Yes, last time I'm asking, dividend from cooperative society is taxable or exempt? Taxable. Taxable. And the Taxable. answer is right, taxable. 6,500 is taxable. अगर किसी को अभी भी डाउट है, if anyone has doubt कि हाँ सर डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, तो only in case of Indian company. If dividend received from Indian company, then it is taxable. ठीक है। अब आप बोलोगे सर लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड से आपको कोई भी पैसा आएगा, दैट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। बट डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ओनली इज एग्जेम्प्ट। बाकी अगर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी मिला, टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव, टैक्स, ठीक है। ये जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट थोड़ा सा ट्राई करोगे, स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, then it will clear it. Next, 12th point, gift from his sister 51,000. Gift from his sister 51,000, taxable or exempt? Exempt. 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 Yes, अगर रिलेटिव से कितने का भी गिफ्ट मिले, कितना भी गिफ्ट मिले, दैट इज एग्जेम्प्ट। सो 51 के, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेस एग्जेम्प्ट 51, ओके। आउटर कॉलम नील, ओके। लास्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग द ईयर ही पेड, ओके। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, है ना। ही पेड एंड वी आर कैलकुलेटिंग इनकम,
सो यहाँ पर नहीं आएगा, दैट मींस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इतना ही, ठीक है, दैट्स इट। टोटल कितना हो जाएगा, टेल मी। अच्छा टोटल 60,500. हाँ, टोटल जस्ट आप इतना मत करो, आप पूरा एग्रीगेट करो, बिकॉज फिर क्या होगा, 2 बार टोटल करना पड़ेगा इसका टोटल, देन उसके बाद में सैलरी एंड अदर सोर्स अगेन एक और टोटल, सो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो 677 प्लस ऑल दिस कितना हो जाएगा, तो 676 है, ओके, एंड इसका टोटल कितना बताया किसने, 60,500, ठीक है, 0056317 736,500, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So इसका नामकरण करो जरा, क्या होगा, will known as 736,500, इसे क्या कहेंगे? सर ग्रॉस टोटल इनकम। Gross Yes. total income. So be confident now, उतना डाउट क्यों है? Gross total income, that's it. And then after this we have to deduct major deduction, ना बड़ा वाला deduction under chapter 6A, ठीक है। इसमें ना स्टूडेंट्स गलती करें, ठीक है, क्वेश्चन रीड करने में इसमें बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। वापस से इसके लिए ना आपको क्वेश्चन देखना होगा, ठीक है। सो देखते हैं फटाफट। मिस्टर अभिजीत हु इज अ फिजिकली disabled to the extent of 55%, that means 80 you, am I right, and 75,000 का डिडक्शन, ठीक है, because 55%, एक डिडक्शन मिल गया, टेल मी। यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में बाकी का सैलरी का भी चेक कर रहा हूं, उसमें भी कुछ हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट वन, बेसिक सैलरी आपने कहीं पे डिडक्शन देखा सैलरी का, नो। डीएनएस अलाउंस, नो। एचआरए, no. Traveling allowance, no. Then he was provided accommodation perquisite, facility तो already मिल रही है, no deduction. Bonus declared, no deduction. Profession tax ये तो खुद deduction है under section 16, यहाँ पे हमने किया था. And then last one, employees contribution to PF, Provident Fund 48,000. क्या ये कहीं पे आपने देखा था? Tell me. Employee. ATC में था EPF. Yes, absolutely right. याद है आपने देखा था EPF, है ना, whereas employees provident fund means अगर employee ने खुद ने PF में पैसे contribute करे हैं तो गवर्नमेंट से हम इसका आपको डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे, will provide you the deduction, ठीक है। So 48,000 ये एक ATC का डिडक्शन आ गया। मैक्सिमम लिमिट इज 1,50,000 और इसने कंट्रीब्यूट कितना करा, 48,000, तो फुल्ली डिडक्शन है ना 48 का। Yes, sir. ओके, प्लीज लेट मी नो, ये वाले पॉइंट में किसी को डाउट है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, प्लीज टेल मी एनी डाउट। नो सर। ओके चलो नेक्स्ट, ही आल्सो रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट का कहीं पे आपने डिडक्शन देखा, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपने देखा होगा 80 TTA एंड 80 E, लेकिन 80 E में किसका मिलता है, एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट। 80 TTA में सेविंग का, यहाँ पर तो क्या है एफडी है, इग्नोर। सेकेंड वाला जो है पोस्ट ऑफिस है बट एफडी अगेन, देन आल्सो इग्नोर, है कि नहीं। एंड थर्ड वन मतलब 11th पॉइंट, डिविडेंड, ये भी इग्नोर होगा क्योंकि डिविडेंड का कहीं पे डिडक्शन नहीं। गिफ्ट, नो डिडक्शन। लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर he paid rupees 32,000 as a premium of his life insurance premium. उसने अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया 32,000 LIP। टेल मी डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलता है अंडर चैप्टर 6A? ATC. Yes, again ATC। बाकी लोगों को भी याद है ना, सिर्फ प्रगति को है सर, है ना। यस यस ओके। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग एकदम ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा एरोप्लेन के जैसे ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं ना। इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज आस्क, ओके।
So during the year he paid 32,000 as a premium on his life insurance policy. So 32,000 again ATC. So देखो ATC में दो हो गए ना. So ATC में दो, एक EPF 48,000 and life insurance policy 32,000. क्या दोनों मिला के exceed हो रहा है 150? 1,50,000? नहीं सर. नहीं हो रहा है. 48 plus 32 कितना हो जाएगा? 80,000 max to max. So lower तो 80,000 ही हुआ ना, तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है. And finally compute his taxable income for the assessment year 2021. That's it. So कितने डिडक्शंस हैं? 3 डिडक्शंस आ गए. ATC में 2 डिडक्शन and एक ATU 75,000. ठीक है. So चलो लिख देते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिखना है. So first you have to write under section ATC. So ATC में 2 डिडक्शन थे. First one is EPF amount 48,000. Next life insurance policy 32. Okay. Next under section ATU. ATU में डिडक्शन कितना था? 55% होगा. देन 75,000. क्लियर. सो टोटल डिडक्शन कितना हो गया? आउटर कॉलम 80 प्लस 75 155. 155. So these we have to deduct. Okay. So 736,500 minus 155. 0 0 5 6 minus 5 1 3 minus 5 नहीं जाएगा. 13 minus 5 8 and 5 581 500. Check it. Correct है क्या? Yes, sir. So final answer. इसका आंसर क्या होगा? Tell me. Net taxable income. Taxable income. ठीक है. So ये इनकम पे आपका स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स चार्ज होगा, क्योंकि वो स्लैब रेट आपके वो स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है. सो डोंट वरी, बस आपका रोल यही तक है. ठीक है. प्लीज आस्क इफ एनी क्वेरी. Excuse me, sir. हाँ. यस May I take the attendance, please? यस यस श्योर. ठीक है. सो मैं इसको यहीं पे